Okay, so let's discuss problem number B of yesterday's code forces contest, that is polynomial round 22. Day 1 plus day 2. Date for the contest was 17th December 2022. B problem, it's coloring. Basically, you have been given t number of test cases, then you have given three integers n, m, and k. This n represent that number of cells. Okay, you have the n number of cells. M represent the number of colors that you have, and you have to color all these cells using this m colors, right? And k is the frequency of the color, right? No. K is basically that number of consecutive cells that should have distinct colors. So, for example, k is equal to 3, so the three adjacent colors should have different colors. Three adjacent cell must have different color. That's about it. Now you have been given the frequency of these color in the another array. So if you sum all these arrays, so at last it will become n, because at last you have to color n boxes or n cells. But just you need to keep in mind that this condition, that uh, for some aesthetic reason he thinks that ith color must be used ai times, which is given, and every consecutive k element should have distinct color. So adjacent k elements should have distinct color. For an example, 1262, and this is the thing. So how will you color that? So basically, let's take a good example, right? I have this over here. Let's say you have 17 number of cells, you have 6 number of colors, your k is 7, that you cannot have like 7 adjacent element cannot have same color. And you have been given these 6 color a b c d e f, and then you have been given frequency of the color. If you sum them up, it will be equal to 17. Now when you go to paint this, so you will push a or at the first cell, okay? You will paint the first cell with a. Now you cannot paint second to like a sixth cell with a color again, but you can paint the seventh color with a, seventh cell, and then you paint the 14th cell with a. Similarly with b, you can paint with b on the second cell, and similarly you can repeat it after the seventh, and you can repeat it after again seventh index. Then you can paint using c, and then c. Now when you paint using d, you can repeat it after d. Now you can repeat it after d, but you don't need to repeat it. So where do you want that color is basically, evil, you will paint over this, and evil. Now d is not being used because now you cannot use d, because if this was something bigger, then you could have used a d over this side. But this is just this, and you cannot use d over this place, because then the distance would not be the 7, right, between two adjacent d's. That's the case. Basically, that's the case where multiple people got hacked. That okay, it's easy to find out, whatever the maximum value from this array. Let's take this maximum value as mx, and we will just divide this n upon mx, like that should be less than k or something great, because this is the time which I am repeating the color. It should be lesser than the times we can repeat the color, like k. So something like that, or plus 1 also. Plus 1 is greater less than or equal to k. It should be less than or equal to k. So that was about the problem, but let's just do it now, like how we can do it. So first of all, we'll take this what array int a of n. एक बार वो वाला केस भी दिखा देता हूँ, सिंपल वाला, जैसे कि ये है। तो आंसर कैसे निकालेंगे? आंसर सिंपल है। हम सोचेंगे कि भाई जैसे अभी इसमें बोला मेरे को, यू कैन नॉट प्लेस टू एडजेसेंट कलर्स को हम सेम नहीं रख सकते। ये सिंपल वाला केस है। टू एडजेसेंट कलर को हम सेम नहीं रख सकते। तो जैसे मान लो अगर ये तुम्हारा पहला सेल है, ठीक है, 1 2, एंड देन यू हैव टू adjacent cells, and then you have two adjacent cell, and then you have again two adjacent cell, and then you have again two adjacent cell. Then why I'm breaking this with a bar? Because after that you can repeat the color. So basically आपको एक कलर 7 टाइम्स दे रखा है, तो क्या हम पेंट कर सकते हैं? एक्चुअली पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 2 12, या दैट्स अबाउट इट। तो अगर ये कलर मैं 7 टाइम्स कैसे रिपीट कर सकता हूँ मैं? तो मुझे लगता है कि मान लो एक मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। लेट्स टेक इट्स नेम इज ए, ठीक है, दिस कलर हैज नेम ए। तो ए को मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सो 6 प्लेसेस आई कैन प्लेस ए। सेवंथ प्लेस पे मैं रख ही नहीं सकता ए को, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी और नहीं रख सकता मैं ए को। यू हैव टू मेंटेन दैट गैप बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ए। गैप शुड बी 2। तो व्हाट इज माय फंडा कि अगर यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट उठाओ, उसको 12 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? इट इज कमिंग आउट एज 1। तो इफ इट शुड बी ग्रेटर देन के, राइट? इट शुड बी ग्रेटर देन, नॉट स्मॉलर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के। कि ये जो एलिमेंट है, लाइक
इक्वल टू के का मतलब क्या हो गया कि ये एग्जैक्टली उतनी टाइम्स आ रहा है। लाइक अगर ये 6 होता तो 2 हो जाता, तो मतलब लाइक ये एग्जैक्टली आपके हर दूसरे बार ये रिपीट करेगा ये कलर ऑब्वियसली। और लाइक इक्वल टू के है और कोई मॉडुलस भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है, कि 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2, और कोई मॉडुलस भी नहीं है तो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कलर्स आपके पास बच भी नहीं रहे, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जब ये मॉडुलस छोड़ेगा तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कलर्स बच जाएंगे, डी और ई, विच यू कैन नॉट यूज एनीवेयर। तो ये फंडा है कि अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं आपके तो वो मॉडुलस उतना ही छोड़ना चाहिए जितना आपके लास्ट मल्टीपल के बाद आपका डिफरेंस बच रहा है। यानी कि n जो है 12, मॉडुलस मेरा कितने ब्लॉक्स में मेरे को ये डिवाइड करा है मैंने, कितने कलर्स हैं बेसिकली तुम्हारे पास 6 कलर हैं। तो ये चीज है कि 6 नहीं, तुम्हें मतलब गैप कितना मेंटेन करना है, 2 का गैप मेंटेन करना है ना। जैसे यहाँ पे 7 का गैप मेंटेन करना था 17 वाले केस में, तो 17 मॉड 7 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, मॉड 7 की वैल्यू 3 होती है, यानी कि एटमॉक्स 3 कलर ऐसे हो सकते हैं जो 7-7 बार आए। ठीक है, सॉरी 7 कलर ऐसे हो सकते हैं, एक सेकंड, एक 3 ऐसे कलर हो सकते हैं जो हर ब्लॉक में आ रहे हो, ठीक है, लाइक ये ए बी सी हर ब्लॉक में आ रहा है, बी हर ब्लॉक में आ रहा है, सी हर ब्लॉक में आ रहा है, बिकॉज दैट मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स यू हैव, दिस मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू, which means नहीं, number of blocks that you have is 17 divided by 7। लाइक कंप्लीट ब्लॉक्स तुम्हारे पास कितने हैं, 2 कंप्लीट ब्लॉक्स हैं और एक पार्शियल ब्लॉक्स है जिसमें केवल 3 एलिमेंट है, ठीक है, सो बेसिकली यू हैव 3 ब्लॉक्स पर तीसरे ब्लॉक में पार्शियल एलिमेंट है। यहाँ पे तो आपका जैसे ये 2 था, तो आपके पास कितने ब्लॉक थे, आपके पास 6 ब्लॉक थे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू यू हैव 6 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। एंड कोई भी ऐसा नहीं है जो पार्शियल हो, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये तो थे ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, और मॉडुलस नहीं था तो कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं, मतलब और कुछ तुम्हारे पास नहीं बच रहा था। नाउ इसके बाद हमें जब कलर्स डिवाइड करने की बात आई, तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स मतलब कौन सा है, ये 7 है, तो 7 तो तुम डाल ही नहीं सकते। पहली चीज, जो तुम्हारा मैक्स है दैट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू कितने से, मैक्स कितने से छोटा होना चाहिए तुम्हारे, एन डिवाइड बाय के से, ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ टोटल तुम्हारे पास ब्लॉक्स हैं एक्चुअल में, ठीक है, एन डिवाइड बाय के। बट एम एक्स जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, और +1 भी कर सकते हो तुम। यार +1 करोगे तो फिर कैसे हो जाएगा, आई थिंक लेस देन होना चाहिए +1 से, समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, देख लेंगे। uh, ऐसे करते हैं, एम एक्स शुड बी लेस देन एन बाई के। +1 होगा या नहीं होगा, देखो इस केस में तो नहीं होगा क्योंकि एन बाय के हमारा कितना है, के हमारा 2 है, 12/2 इक्वल टू 6 है, तो एम एक्स शुड बी लेस देन 6, तभी हम ये स्प्लिट करेंगे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नो है, दैट्स व्हाई। पर जहाँ पे भी जैसे n/2 जैसे मेरा ये था, तो एम एक्स अपॉन एम एक्स मेरा 2 है तो वो तो हो जाएगा, ठीक है। पर अगर 13 भी होता वो तो भी चल जाता, ठीक है। 13/2 कितना होता है हमारा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस शुड बी नॉट इक्वल टू समथिंग लाइक दैट। और एक सेकेंड, ओके, तो बात करते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है किसी कलर की, वो हो सकती है n/k+1। क्यों, जैसे ये 17th वाला था, वापस 17th वाले पे आते हैं, तो जैसे कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी 3 आ रही है, ठीक है। सो देखो क्या होना चाहिए, 17/7 मेरा 2 है, कि मतलब मेरे 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। पर मैक्सिमम कलर की फ्रीक्वेंसी 3 हो सकती है क्योंकि कुछ रिमाइंडर बच रहा है ना। तो ये देखो यहाँ पे भी तीसरा नंबर जैसे ए पर तीसरा ए फिर भी मैं फिट इन कर पा रहा हूँ। सो बल्कि जब ये डिवाइड बाय 2 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इससे +1 इतना हो सकता है, ठीक है। पर जब ऐसा नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट होगा, तो उस केस में जैसे अगर मान लो 14 ही नंबर होते तो हम तो बिल्कुल भी फिट नहीं कर पाते। तो उसको भी हम हैंडल कर लेंगे, वो हम दूसरी कंडीशन से हैंडल करेंगे, कि मान लो कि फ्रीक्वेंसी इसकी 2 हो सकती है, नहीं मैं बोलूंगा 3 हो सकती है। पर फिर भी जैसे अगर कोई 3 वाला आएगा तो उसको मैं बोलूंगा कि तुम्हारा मॉडुलस कितना बच रहा है, मॉडुलस 0 बच रहा है ना। तो 0 इज द अमाउंट ऑफ कलर जो तीसरी बार आ सके। तो मतलब ऑब्वियसली 2 ही कलर तुम्हारे आ सकते हैं, मतलब 2 बार ही आ सकता है तुम्हारा कोई कलर, ठीक है। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, चलो। मेरे को चाहिए कि एक तो मैक्सिमम कलर कितनी बार आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो आ रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी आ रही है, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैप बना लूं, फ्रीक्वेंसी मैप। सीन मान लो ए आई मैंने सीन करा, एम एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा ए आई, और एक फ्रीक्वेंसी मैप में मैंने स्टोर कर लिया एम ऑफ ए ऑफ आई प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो अब मेरे को मैक्स एलिमेंट मिल गया। नाउ इफ तुम्हारा मैक्स एलिमेंट इज बड़ा हो गया तुम्हारे एन अपॉन के प्लस वन से भी, तो भाई हटा ही दो, ठीक है, तुरंत ही हटा दो, सी आउट, नो -1, क्योंकि इससे ज्यादा बार तो आ ही नहीं सकता। एन बाई के प्लस वन, वो प्लस वन भी तब आएगा जब इफ जो तुम्हारे मैक्स कलर की फ्रीक्वेंसी है, मैप ऑफ मैक्स इज अगर बड़ा हो जाए तुम्हारे एन मॉड्यूलो के से, तो भी हटा दो। एल्स तुम बोल सकते हो। यस, ठीक है, दैट्स अबाउट इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि एक कलर मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, वो है एन अपॉन के प्लस वन बार आ सकता है। प्लस वन क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ रिमाइंडर बच रहा हो, और अब वो जो कलर है वो मैक्सिमम कितनी बार, कितने कलर है जो मैक्स बार आ सकते हैं, तो वो है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तीन बच रहा है, तो तीन ही ऐसे कलर होंगे जो आपके एन अपॉन के प्लस वन बार आ सके। एन बाई के बार तो कितने भी कलर आ जाएंगे, ठीक है, तुम सात के सातों कलर को दो बार ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि टोटल अगर तुम छह कलर लेके चल रहे थे, जितने भी, उसको दो बार ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तीन बार कौन आएंगे? तीन बार वो ही आएंगे जितना वो रिमाइंडर तुम्हारा लास्ट ब्लॉक में बच रहे होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है लास्ट ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। ऑब्वियसली लास्ट ब्लॉक तो बहुत ही कम, जब पूरा डिविजिबल है तभी कंप्लीटली फिल्ड है, लाइक 12 और 2 वाले केस में लास्ट ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड था। ओके, इसको रन कराते हैं। नो यस आना चाहिए फिलहाल, तो मैप वाज नॉट डिक्लेयर, बिट्स लगा लो यार। एम एम के एम के, इसको एम कर दो क्योंकि साइज तुम्हारा एम है। एम नहीं कर सकते, फिर मैप का नाम एमपी कर दो, या उसी को जेड कर देते हैं, वट एवर। एमपी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड काहे? या दैट्स अबाउट इट। नो नो, व्हाई नो नो? mx इज ग्रेटर देन nk प्लस, अच्छा nk प्लस वन हो सकता है, nk प्लस टू से बड़ा हो जाए तो पंगे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी प्लस वन करना पड़ेगा बिकॉज एन मॉडल के हो सकता है, उतना तो हो सकता है। यस हो जा। अबे क्या यस हो गया? देखो इस केस में हो क्या रहा है तुम्हारा, एन बाय मैक्स कितना है, टू है, एन अपॉन के कितना है, कितना, सिक्स है। सिक्स है। अब वो भी तो चीज है यार, मतलब अगर mx की वैल्यू इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n प्लस के प्लस वन है, तो सी आउट हम गेस कर देंगे, ठीक है। मतलब ये चीज तो हो नहीं चाहिए, देखो m की सबसे पहली कंडीशन है m की वैल्यू इसके प्लस वन से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बट अब वही चीज है यार, इफ
एम एक्स की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एन बाई के है, तो हम सीधा सी आउट यस कर देंगे। तो हम सीधा यस कर देंगे। एल्स में जब जाएंगे हमें चेक करना पड़ेगा, इफ अगर एम एक्स एम ऑफ एम एक्स, ठीक है, मैप एम पी ऑफ एम एक्स कितनी बार आ रहा है, अगर ये ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, मतलब एन एक्स, पहली बात तो वो एन के प्लस वन टाइम्स है, और अगर ये ज्यादा बार आ रहा है एन मॉड्यूलस के टाइम से, तो सी आउट नो कर दो। एंड एल एल्स तो यस कर दो। एंड एल, और अगर इसके भी एल्स में है उसका नो कर दो। अब देखते हैं, अब सही आ रहा होगा, चलो। नो यस, लेट्स स्टार्ट सम दिस अप। अच्छा क्वेश्चन था यार, थोड़े से इसमें मतलब ऐसा कुछ अच्छा मतलब कैच केसेस नहीं थे। यू जस्ट नीड टू थिंक कि कितने ब्लॉक्स है जो कंप्लीटली फिल्ड है, कितना ब्लॉक है जो पार्शियल फिल्ड है। एन के प्लस वन वाला ब्लॉक मेरा पार्शियल फिल्ड है, उसमें इतने ही एलिमेंट आने चाहिए जितना वो मॉडलिस में मतलब उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आएंगे तो नो कर दो। एक्सेप्टेड। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। ओके।